Right. So, hi everyone. This is Sonia Chawla. I'm the founder of Mommy Wise and your host for today. Today we are celebrating International Women's Day on Mommy Wise, and to do the same, we are in conversation with five women from various walks of life who have achieved a certain level in the work that they do, and we are discussing with them their journey, their struggle, and if they feel that anything has changed around them over the years in when it comes to women equality, the respect for women, and how we are headed in terms of creating that environment for women to achieve big in life. Uh, Before I get the next guest in, I would like to tell our viewers that there is an exciting giveaway that we have planned for them to make this Women's Day an extra special one for them, and that is the International Women's Day theme this year is choose to challenge, and we would like to know from you what is it that you would like to challenge. Uh, you can send in your messages to us in the comments section all day. We This is our third live today, and we have another two lined up at 5 o'clock and 7 o'clock, and we would love to hear from you. Uh, so. Give me 1 second before I get my new next guest in. I'm so sorry. I was just checking in with the guest because she's not being able to join the session. So I was just fiddling with that. So sorry. So what I was telling you was that yeah, we have an exciting giveaway plan for all our viewers. And that is beauty products from Namely Natural. You need to send in your messages to us in the comment section below and tell us what is it that you would like to choose to challenge this Women's Day to see that change in the environment that we are currently in, to make it better for the women around us and for ourselves too. So, with that, let me now introduce you to our third guest for today, which is a popular name, Shobna Yadav, and you must have seen her very often on your television screens. Shobna is a versatile anchor with ABP News, and she has over 15 years of experience in the news industry. She is the host of the popular primetime show Matrubhumi, and she has to her credit a lot of interviews with one-on-one interviews with Smriti Irani, Ravi Shankar Prasad, Arvind Kejriwal, Abhishek Manu Singhvi, Akhilesh Yadav, Raman Singh, and many, many more. She is multifaceted news broadcaster, and she is known for her gift of the gab. So let me quickly bring her in into this conversation and know from her and from where she is today if she sees if what is it that has changed over the years, and what is it that can change going forward for us to have a better environment. So just give me 1 second while I bring her into this conversation. Hi Shomna, how are you doing today? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you so much, Shobna. बिल्कुल अच्छे हैं, and it is a pleasure to meet you here. So, सेम है। Shobna, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज वुमेन्स डे? मैं ऑफिस में हूँ, बुलेटिन्स मेरे चल रहे हैं और जितनी हमारे कोलीग्स आसपास हैं हम लोग सब आपस में, और विद बॉयज आल्सो। सो ओवरऑल इज अ गुड एनर्जी। So, बट मैं Shobna, यही thank you कहना so. चाहूंगी कि हम सिर्फ एक दिन क्यों मनाते हैं, विमेन का तो हर दिन होता है। और नजरिया बदलना चाहिए हमें हमें सबको। इनफैक्ट हमें अब ये सोचना चाहिए कि भाई विमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता है, रोज मनाए पूरी दुनिया। Yes, very true. So, Shobna, I know आपको बहुत busy schedule है और आपने ये time हमारे लिए निकाला है. Thank you so जी। much. एंड आप बताएंगे शोभना, जैसे हमारी सुबह से अलग अलग लोगों से बात चल रही है, सो वो जी। हमें यही बता रहे हैं कि चीजें काफी चेंज हो गई है उनके हम्म। इन्वायरमेंट में या जिस काम में वो है। हम्म। फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है, क्या चीजें चेंज हुई है ओवर द इयर्स? हैव यू सीन कि चेंज हो रहा है स्लोली एंड स्टेडली इन द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन? आप आप पूछ रही हैं महिलाओं के लिए क्या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है? हाँ जी। पहले पहले से तो बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी वो नाकाफी है। सो जो आपको क्या बदलाव एक महिला चाहती है अपने काम करने की जगह पर, अपने घर में, अपने समाज में, अभी भी हम उस मायने में, उस नजरिए में बहुत पीछे हैं। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा और कहाँ नहीं है चेंज? क्योंकि समाज में ही चेंज नहीं है। महिला को हमेशा दूसरे पायदान पे रखा गया है, सोच ऐसी ही है, और खुद महिलाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो खुद ये मान के चलती हैं कि हम दूसरे पायदान पर हैं, अरे ये काम हम तो कर लेंगे, वो नहीं कर पाएगा, या
तो ये हम खुद, मुझे लगता है कि हम खुद महिलाएं जिम्मेदार हैं अगर हम अपने को पहले पायदान पर अभी तक नहीं ला पाए या हम नहीं सोच पाए हैं। वेरी ट्रू। शोभना, अ, हाँ, ये मेरा भी मानना है कि ये सोच है, बाकी चीजें तो बाद में है, एक सोच है। और इससे पहले कि बाकी की सोच बदले, हमें खुद की एक सोच बदलनी पड़ेगी। बट बिल्कुल। इसकी शुरुआत कहाँ पर होगी और कैसे होगी? शुरुआत होगी अगर हम अपने घर में जो हम अपने बेटों को अपब्रिंगिंग देते हैं, जो परवरिश देते हैं, अगर हर माँ ये ठान ले कि बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना है। हालांकि अब समाज बदला है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी, जो पहले स्थिति थी वो अब नहीं है। लेकिन अगर हर माँ अपने रोल को जिम्मेदारी से निभाए और हम इतनी एजुकेट करें अपनी सोसाइटी को, अपनी महिलाओं को, कि वो बेटे को ये कह के ना पालें कि तुम बेटे हो या तुम बेटी हो तुम्हें दूसरे घर जाना है, तो शायद हम समाज को बदल पाएंगे, हम और एम्पावर हो पाएंगे हम। मतलब जो ये जो एक सोच है ना कि तुम रात में बाहर मत जाओ क्योंकि तुम तो लड़की हो, जाओ बेटा तुम ले आओ, अच्छा बहन को कहीं जाना चलो भाई को साथ लगा दिया। तो पहले तो हमें ये बदलना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन ये तभी बदल पाएगा जब हम सुरक्षित समाज दे पाएंगे। तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। वेरी ट्रू। सो शोभना, ये चीज जैसे आपने कहा समाज के अंदर ही है, हम देखते हैं कि ऊपर के लेवल पे, हायर पोजीशंस वगैरह पे विमेन नहीं है। एंड क्या ये चीजें बाकी जगह पे है, कि आपको लगता है कि मीडिया और उस एनवायरनमेंट में भी ट्रू है कि आपको भी ऐसा स्ट्रगल करना पड़े अगर बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचना हो या कुछ, सो वहां पर भी है? ये हर जगह है, ये समाज की शुरुआत से ही है। और उसके लिए देखिए एक और चीज, हमने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हमने सुना है। महिलाएं बहुत कम एजुकेशन में लेट आना शुरू हुआ। उसके बाद महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में बेहद कम है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, हमारा 300 400 का अगर बैच था, 320 के करीब का बैच था, तो हम हार्डली 7 और 8 गर्ल्स वर देयर। तो उनके ऊपर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बॉयज की ज्यादा हो गई, ऑफ कोर्स वुमेन से नंबर वाइज भी। सेम केस मीडिया में भी है। दूसरा, फिर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो एक जो सोच है ना, आप उसको नहीं बदल सकते। वो ये सोच है कि ये महिला है, अरे ये कहाँ कर पाएगी, अरे तुम इतना टाइम थोड़ी ना दे पाओगी, अरे तुम ये थोड़ी कर पाओगी। और हम महिलाएं भी ये मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम मतलब अभी ये कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। तो शायद इसलिए कभी उस पदों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ऊंचे पदों पर पहुंची है मीडिया में भी। बरखा दत्त है, अलका सक्सेना है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं पहुंची हैं। सो इसमें शोभना, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? सी, मीडिया और ये फिल्म्स एक ऐसा जगह है जहाँ से सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल लुक अप टू यू। आप एक इंस्पिरेशन है, लोग आप लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और आगे वैसे ही ड्रीम करते हैं कि हम भी वहां पर पहुंचना चाहेंगे। बट मीडिया का क्या रोल प्ले हो सकता है इस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए? और क्या ऐसा एजुकेशन, कोई हम फोकस भी है? हम एक जागरूकता, अगर मीडिया ये जगाए, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाए, बतौर समाज, बतौर सरकार, बतौर नागरिक, तो शायद हम इस सिनेरियो को बदल सकते हैं। और मीडिया इसको तभी बदल सकता है जब सरकारें जिम्मेदारी उठाएं। खाली मीडिया के मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा। सरकार को ग्राउंड रूट, जिसे कहा जाए ग्रास रूट लेवल पर, आपको स्कूल्स, एजुकेशन, जब तक आप शिक्षा लेकर नहीं आएंगे समाज में, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर आप विदेशों से अपने को कंपेयर करें, वहां 100% लिटरेसी होने के बावजूद भी महिलाएं दूसरे पायदान पर। तो इसके लिए जो एक पूरा, जो पिछले हजारों साल से जो समाज हमने बिल्टअप किया है, वो समाज धीरे 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 बदलेगा, बहुत बदला है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है। उसको हम और आप एक दिन 2 दिन में ये कहें कि आज रात बस सुबह होगी और बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। सोच नहीं बदली है क्योंकि। या शोभना, आप हर लेवल पे काम करते हैं, आपको लगता है ये चीजें ग्रास रूट लेवल पे दूसरी टीयर बी सिटीज के अंदर या टीयर 3 सिटीज के अंदर भी चेंज हो रही है, या ये हर सिर्फ जगह हो हमारे? रही है। अब ये गांवों के लेवल तक चेंज हो रही है। गांव में भी एक किसान भी चाहता है कि मेरी बेटी पढ़े। वो पढ़े लिखे बच्चे चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरी तरह अनपढ़ हो, मेरी तरह अंगूठा लगा के उसको कोई भी कितना भी कर्ज दे दे और कितने पे साइन करवा ले। सेम वो बेटियों के लिए भी चाहता है कि पढ़े लिखे मेरी बेटियां आत्मनिर्भर बने। ऐसा नहीं है, ये सोच बदली है और हर स्तर पर बदली है। मेरे घर में जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, वो चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ के और IAS IPS बने। वो लंदन भेजना चाहती है। अब वो भेज पाती है नहीं भेज पाती है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन वो एक असम के गांव से है और वो मेरे घर में है पिछले 10 सालों से। वो चाहती है कि उसके बच्चे लंदन जाए। तो कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। पहले तो जो गरीब तबका था वो सोचता भी नहीं था। सोच में? वो तो सोचते थे सपना देखना भी गुनाह है। अब कम से कम उन्होंने सपना देखना शुरू किया है, तो शायद उसको सच्चाई में भी वो बदल पाएंगे। वेरी ट्रू।
शोभना, ऑफ लेट बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट के से कैंपेन्स चले थे वगैरह, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है कि जिसको एज ए वुमेन एम्पावरमेंट का जिसमें आपको भी लगा हो दैट यू वर ट्रूली चिपको इंस्पायर्ड? और आंदोलन, हम सबने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। जब महिलाओं ने ठान लिया तो चिपको आंदोलन जो है वो पूरा महिलाओं की देन थी। आपको याद होगा कि जब वो पेड़ काटने आए तो महिलाएं कैसे उन पेड़ों से चिपक कर बैठ गई और एक मुहिम, एक पूरा आंदोलन छिड़ गया। तो ऐसा नहीं है, अगर महिलाएं ठान लें और किसी भी उसमें, तो आपने देखा होगा बहुत से आंदोलन होते हैं, किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, तो उसमें जब महिलाएं पहली पंक्ति में, पहली कतार में बैठ जाती हैं, तो वो बहुत से उदाहरण हमारे पास है। स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण हमारे सामने है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर है, ये एक सोच बना दी गई है, क्योंकि फिजिकली कमजोरी को शायद मेंटल और इमोशनल कमजोरी से जोड़ दिया है समाज ने। बट शोभना, जब भी कोई वुमेन बाहर आके कुछ बोलना चाहती है या बहुत वोकल होती है किसी भी उसके लिए, तो इसको एक फेमिनिस्ट का टैग दिया जाता है, चाहे वो एक नॉर्मल बात कर रही हो ऑफ इक्वालिटी। नाउ इज दैट फेमिनिज्म, एज इन उनको फेमिनिस्ट का कैटेगरी डाल दी जाती है पता चाहे है, आप नॉर्मल बात भी कर रहे हो? ये समाज ही ऐसा बन गया है ना। कोई महिला अगर मुखर है, ज्यादा बोल रही है, तो अरे बड़ी वाहियात है, बड़ी बेकार, इसका कैरेक्टर ही खराब है। ये एक समाज ही ऐसा निर्मित कर लिया ना हमने आसपास। जो महिलाएं मुखर हैं, जो बोल रही हैं, आप उन्हें फेमिनिस्ट कहिए या आप उन्हें जो भी कहिए, क्योंकि हमने एक ऐसा समाज बिल्टअप कर दिया। हमारे साथ की बहुत सी महिलाएं उन महिलाओं के साथ खड़ी हो जाएंगी। अगर कोई महिला आवाज उठाए तो उसका विरोध करने वालों के साथ बहुत सी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी। तो जब हम में खुद में एकजुटता नहीं है तो किसको क्या दोष देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात। शोभना, इस बार का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का है चूज टू चैलेंज, एक थीम चल रही है। सो हम्म। अगर आपको कुछ चैलेंज करना हो इस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, आप कौन सी वो एक चीज को चैलेंज करना चाहेंगी? तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आप क्योंकि एक चीज को चैलेंज करने की बात कर नहीं, रही आप हैं, तो तीन चार बता दीजिए, मतलब वो मैं कौन उस सी दो तीन सोच चीजें? मैं उस सोच को बदलना चाहती हूँ, सोच को चैलेंज करना चाहती हूँ, जिसमें ये कहा जाता है अरे यार तुम रहने दो ना, तुमसे नहीं होगा। ऑलराइट। ऐसा कुछ भी एंड नहीं है, मेरे भी उतने ही बड़े पंख है, मैं भी उतनी ही बड़ी उड़ान भर सकती हूँ। बिल्कुल। एंड शोभना, आप हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या एक मैसेज होगा? वो सारी, एज इन, मैं विमेन भी नहीं कहूंगी, वो नई पीढ़ी की लड़कियां जो आगे जाके कुछ अचीव करना चाहती है, जिन्होंने शायद अभी वो स्ट्रगल देखी भी नहीं है कि शादी के बाद उनको क्या फेस करना पड़ेगा या और सारी चीजें, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाउ इज इट दैट वी हर कैन उम्र प्रिपेयर? का हर उम्र का, हर दौर का खुल के स्वागत कीजिए। आप जब तक बेटी हैं, बेटी की जिम्मेदारी निभाइए, पढ़िए लिखिए। आपकी ऊंची हौसलों की उड़ान इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको कोई हरा ना सके। दूसरा, जब आप माँ बने तो उस जिम्मेदारी को भी बहुत ईमानदारी से निभाइए। ऐसा मत कीजिए कि नौकरी करने के चक्कर में बच्चों को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब तक माँ जिम्मेदार नहीं होगी, हम जिम्मेदार समाज कभी निर्मित ही नहीं कर सकते। तो जो काम जिस उम्र का जब हो, उसको ग्रेसफुली और पूरी ईमानदारी से निभाइए, बढ़िया शानदार समाज तैयार हो जाएगा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शोभना, थैंक यू सो मच फॉर दोस थैंक इंस्पायरिंग यू। वर्ड। थैंक यू आपने सो बहुत मच। अच्छी थैंक यू। तरह से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for inviting me for this session. Thank you so much. Our pleasure, Shobna. Thank you so much. Okay, bye bye bye. Bye bye.